تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں ایک شخص کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک گھوڑے پر تیزی سے کہیں سے جا رہا ہوتا ہے، اور وہیں پہ ہمیں ایک دیوار پر ایک پوسٹر لگا ہوا دکھایا جاتا ہے جس پہ ایک ایول اسپرٹ کی پینٹنگ بنی ہوئی تھی، اور وہاں پہ موجود لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جس کے گھر میں بھی کوئی نیا بچہ پیدا ہوتا ہے یہ ایول اسپرٹ اس پر حملہ کرتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلے سین میں ہمیں ایک بڑے کورٹ یارڈ کے اندر ایک مونک کو دکھایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک سورڈ مین بھی ہوتا ہے، اور وہیں پہ ہمیں ایک کمرے کے اندر سے ایک عورت کے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ ابھی کچھ دیر میں ہی ایک بچے کو جنم دینے والی تھی، اور باہر موجود وہ مونک اس نئے بچے کو اس ایول اسپرٹ سے بچانے کے لیے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ جس کے بعد اس کے ساتھ موجود وہ سورڈ مین اس سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس یہ عجیب سا ریلک کس لیے ہے، اس سے تم کیا کرو گے؟ تو وہ مونک اسے بتاتا ہے کہ یہ میرا 9 رنگ گولڈن ریلک ہے، کوئی بھی ایول اسپرٹ اس کے پاس سے گزرتی ہے تو اسے فوراً سے پتہ چل جاتا ہے اور یہ وائبریٹ ہونے لگتا ہے۔ جس کے بعد اتنے میں ہمیں اندر سے آواز سنائی دیتی ہے اور ایک عورت کہتی ہے کہ مسٹر جن آپ کو مبارک ہو، آپ کے یہاں لڑکا ہوا ہے، اور پھر ہمیں اندر کا سین دکھایا جاتا ہے، مسٹر جن باہر انتظار کر رہا ہوتا ہے، اتنے میں ایک عورت اس کا چھوٹا بچہ اٹھا کر اس کے پاس آ جاتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کو 60 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ ایک بچہ ہوا ہے۔ مگر اتنے میں اچانک اس مونک کا گولڈن ریلک اپنے آپ ہی وائبریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس پر وہ سمجھ جاتا ہے کہ کوئی ایول اسپرٹ آس پاس موجود ہے، اور اتنے میں وہ ایول اسپرٹ کمرے کا دروازہ کھول کر تیزی سے اس کے اندر چلے جاتی ہے، جس سے وہاں پہ ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے، اور مسٹر جن کہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ جب وہ اپنے بچے کی طرف دیکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور اسے نیچے پھینک دیتا ہے، اور باہر کھڑے ہوئے لوگ یہ سن کر بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، اور وہ اس مونک کو جب پتا چلتا ہے کہ ایول اسپرٹ اس بچے کے اندر چلی گئی ہے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے فوراً سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ جس کے بعد اگلے سین میں ہمیں ایک لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام جیان ہوتا ہے، وہ وہاں موجود سب لوگوں کو منکی کنگ اور اس کے ماسٹر کی جرنی کے بارے میں قصہ سنا رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے چاروں طرف بہت زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ مگر جیسے جیسے وہ کہانی سنا رہا ہوتا ہے اتنے میں اچانک بیچ میں کوئی شخص چھپ کر اسے انٹرپٹ کر رہا ہوتا ہے، اس سے بار بار سوال پوچھتا ہے، جس سے جیان بھی تنگ ہونے لگتا ہے اور اپنے چھوٹے برادر شاولی کو اس سوال پوچھنے والے بندے کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجتا ہے۔ تو شاولی فوراً سے ان لوگوں کے اندر چلا جاتا ہے اور اس بندے کو ڈھونڈتا ہے جو کہ بار بار جیان سے سوال پوچھ رہا ہے، اور جب جیان اپنی کہانی سنا کر ختم کر دیتا ہے تو اتنے میں وہ بندہ زور سے ہنسنے لگتا ہے، جس پر سب لوگ ہٹ جاتے ہیں، اور ہمیں دکھایا جاتا ہے شاولی اس بندے کے بالکل سامنے کھڑا ہوتا ہے اور انگلی سے اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہی وہ بندہ ہے، جس پر جیان غصے میں آ کر اس سے کہتا ہے کہ ہیلو مسٹر، اگر تمہیں اس کہانی کے بارے میں مجھ سے زیادہ معلوم ہے تو پھر تم خود ہی کیوں نہیں سنا دیتے، اور تمہیں ذرا سا بھی سینس نہیں ہے کہ کوئی بندہ اگر کوئی کہانی سنا رہا ہے تو اسے چپ چاپ کھڑے ہو کر سنا جاتا ہے۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں بالکل بھی انٹرپٹ نہیں کیا، میں تو تمہاری ہیلپ کر رہا تھا، جس پر جیان اس سے کہتا ہے کہ تم خود کو زیادہ ہی سمجھدار سمجھ رہے ہو۔ یہ کہہ کر وہ اپنی سوٹ باہر نکالتا ہے اور اس کے ساتھ فائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، جس میں وہ اس پر ایک کے بعد ایک سوٹ اٹیک کرتا ہے، جس سے وہ لڑکا بہت ہی آسانی سے ڈاج کر کے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور جیان کو بہت ہی آسانی سے پیچھے دھکیل دیتا ہے، جس پر جیان کہتا ہے کہ تم دکھنے میں بالکل سیدھے سادے لگ رہے ہو مگر تمہارے پاس بھی کافی اسکلز ہیں، مگر میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی سوٹ کو زور سے زمین پہ گاڑتا ہے اور پھر اپنی فنگر سے اسے ہوا میں اوپر اچھال دیتا ہے، اور سوٹ کو پکڑ کر واپس سے زمین کی طرف آتا ہے اور اپنا سوٹ آرٹ سب لوگوں کو دکھاتا ہے، جس سے وہاں پہ ہر طرف دھول مٹی اڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور جیان اپنے سوٹ کی مدد سے زمین پہ ایک پیٹرن بنا دیتا ہے جس سے ایک بلو انرجی نکل رہی ہوتی ہے، جسے دیکھ کر اس کا برادر کہتا ہے کہ برادر تمہارے ین یانگ ڈائیگرام سے انرجی نکل رہی ہے۔ تو جیان دیکھتا ہے کہ وہ انرجی اصل میں اس لڑکے کے اس فین سے نکل رہی تھی، اور پھر جیان سب لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں آپ لوگوں کی سٹی میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کی مونسٹرز اور ڈیمن سے لڑنے میں مدد کروں۔ میرے پاس نہ صرف ڈیمن سے لڑنے کی پاور ہے بلکہ میں بہت ساری ڈیزیز کو بھی ہیل کر سکتا ہوں، اور اس کے علاوہ میرے پاس ایسٹرونومی اور جیولوجی کی بھی کافی اچھی نالج ہے۔ یہ کہنے کے بعد اچانک ایک شخص اس کا ہاتھ آ کر پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہمارے ینگ ماسٹر کو ایک بہت ہی خطرناک ڈیزیز ہوئی ہے، آپ پلیز ہمارے ساتھ چلیے۔ یہ بات وہ دوسرا لڑکا بھی سن لیتا ہے، جس کے بعد جیان اس آدمی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ تو اس شہر کے سب سے امیر آدمی مسٹر جن کا سرونٹ ہے، اتنا امیر آدمی مجھے اس ڈیزیز کو ہیل کرنے کے لیے تو مالا مال کر دے گا، مگر آخر وہ مجھے اتنے پیسے کیوں دینا چاہتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس ینگ ماسٹر کو کسی ایول اسپرٹ نے پوزیس کیا ہو؟ یہ تو پھر بہت زیادہ خطرے والی بات ہوگی۔ جس کے بعد وہ اس بندے سے کہتا ہے کہ اصل میں مجھے اپنی فیملی میں کچھ ضروری کام ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، مگر اتنے میں
वो सफेद कपड़ों वाला बंदा वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि मेरे पास ज्यादा स्किल्स तो नहीं है, मगर मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ और हम दोनों एक साथ हैं। ये कहने के बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग मिस्टर जिन के घर में मौजूद होते हैं और पेट भर कर खाना खा रहे होते हैं। इतने में जियान उठकर दरवाजे से झांक कर देखता है तो मिस्टर जिन की वाइफ कह रही होती है कि इतने सालों के बाद हमारे घर एक बच्चा हुआ है और उसे भी एविल स्पिरिट ने पजेस कर लिया है। तो मिस्टर जिन उससे कह रहा होता है कि तुम घबराओ मत, हमें 2 अच्छे स्किलफुल मास्टर मिल गए हैं तो वो हमारे बच्चे को ठीक कर देंगे। मगर वो औरत कहती है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये 2 बंदे तुम्हारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। उसकी बातें जियान को काफी बुरी लगती हैं, जिस पर वो कहता है कि तुम लोग यहाँ बैठकर मजे मजे से खाना खा रहे हो। मैं जानता हूँ कि मिस्टर जिन इस वक्त इमरजेंसी में है तो हम उनसे जो भी मांगेंगे वो हमें मना नहीं करेंगे, मगर ये बिल्कुल गलत है। मेरी भी अपनी फैमिली है, मेरे साथ भी अगर ऐसा होता तो मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता। पर क्या होगा अगर हम इसमें फेल हो जाए तो? और वैसे तुमने तो मुझे अपना नाम भी नहीं बताया, आखिर तुम हो कौन और तुम मेरे साथ क्यों आए हो? तो वो बंदा कहता है कि मेरा नाम श्याओ याओ है। और वो कहता है कि जरा तुम अपने भाई ली की तरफ देखो। वो ली से कहता है कि क्यों, क्या तुम और भी ग्रिल चिकन खाना चाहते हो? तो वो कहता है कि हाँ, मुझे और भी चाहिए। इतने में मिस्टर जिन भी बाहर आ जाता है और उनसे कहता है कि आप लोग अगर मेरे बेटे को ठीक कर देते हैं तो मैं आप लोगों को मुंह मांगी रकम दूंगा। वो उन्हें बहुत सारे सोने के सिक्के दिखाता है, जिस पर जियान फौरन से मान जाता है और कहता है कि अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो फिर मैं आपकी खातिर एक कोशिश जरूर कर सकता हूँ। चलिए मुझे बताइए कि आपका बेटा है कहाँ? ये कहने के बाद वो उसे अपने बेटे के पास ले जाता है तो वो एक लकड़ी के घोड़े के ऊपर झूला झूल रहा होता है। जैसे ही वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो जियान उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि इस एविल स्पिरिट को तो मैं देखता हूँ। मगर हम देखते हैं कि वो बच्चा अचानक से नीचे उतर जाता है और लकड़ी के घोड़े को उठाकर जियान पर दे मारता है, जिसे जियान अपनी सोट से काट कर 2 टुकड़े कर देता है। और वो एविल स्पिरिट जियान पर अपने डार्क एनर्जी हैंड से अटैक करती है तो जियान अपनी सोट बाहर निकालकर उस पर अटैक करता है, जिससे वो ब्लैक और सोट से टकराते ही जल जाता है। और श्याओ याओ इस बात को नोट करता है। इतने में वो छोटा बच्चा 2 जायंट एविल हैंड क्रिएट करके जैसे ही जियान पे हमला करता है तो वो अपनी सोट की मदद से बाहर निकल आता है और उस एविल स्पिरिट पर हमला करने की कोशिश करता है। मगर वो बच्चा अपनी मासूमियत के बहाने अपने आप को फिर से बचा लेता है। इतने में श्याओ याओ भी उस पर अपने फैन से अटैक करता है तो बच्चा आसानी से उसके फैन से भी बच जाता है और उस पर भी एविल हैंड से अटैक करता है। तो श्याओ याओ अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उसके एविल हैंड्स को वहीं पे ही रोक देता है, जिससे उस बच्चे को भी थोड़ी सी तकलीफ महसूस होती है। और इसी बात का फायदा उठाकर श्याओ याओ उसे एक कॉर्नर की तरफ ले जाने की कोशिश करता है और वो बच्चा जैसे ही उस पे हमला करता है तो श्याओ याओ उसके हैंड्स पर फिर से एनर्जी अटैक करके उसे दीवार के साथ चिपका देता है, जिसकी वजह से वो बच्चा अपने हाथों को वापस खींच नहीं पाता। और जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो इतने में जियान उसे पकड़कर ऊपर उठा लेता है और श्याओ याओ अपनी सोट निकालकर उसके एविल हैंड्स को काटने की कोशिश करता है। मगर इतने में हम देखते हैं कि दीवार का एक बड़ा टुकड़ा सीधा जियान और उस बच्चे को आकर लगता है, जिससे वो दोनों ही वहाँ से दूर जा गिरते हैं। और हम देखते हैं कि उस दीवार के टुकड़े के लगने की वजह से उन दोनों की हालत खराब हो जाती है और वो बच्चा भी बिल्कुल बेहाल हो जाता है। जिसके बाद श्याओ याओ और जियान दोनों ही उस बच्चे की एविल स्पिरिट को उसके निकाल कर एक दरख्त पर दे मारते हैं और जियान अपनी सोट की मदद से उसे वहीं खत्म कर देता है। और वहीं पे हमें एक और एविल स्पिरिट को दिखाया जाता है जो कि पहले वाली से बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है। वो श्याओ ली की तरफ देखती है और दूसरी तरफ श्याओ याओ उस छोटे बच्चे को अपनी गोद में लिए हुए उसके साथ बातें कर रहा होता है। इतने में मिस्टर जिन भी वहाँ पे आ जाता है तो वो लोग उसका बच्चा उसे दे देते हैं और फिर जियान उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप हमें बहुत बड़ा इनाम देना चाहते हैं, मगर हमें इतना ज्यादा इनाम नहीं चाहिए। ये सुनकर मिस्टर जिन कुछ सिक्के निकालकर उसके हाथ पे रख देता है, जिसे देखकर जियान के भी तोते उड़ जाते हैं और वो कहता है कि क्या कुछ सिक्के? तो मिस्टर जिन कहता है कि तुम्हारी इस लड़ाई की वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है। तुमने यहाँ पे जितनी तोड़फोड़ की है उसके बदले में मैंने तुम्हारे सारे पैसे काट लिए हैं। ये सुनकर श्याओ याओ कहता है कि चलो मुझे इसमें से कोई हिस्सा नहीं चाहिए, सारे तुम रख लो। वो लोग अपने कुछ सिक्के लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं और जियान कहता है कि मैंने तो खाना भी नहीं खाया और अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। और इतने में उसे अचानक किसी चीज की खुशबू आने लगती है तो वो अपने भाई की तरफ देखता है तो उसके पास एक चिकन लेग पीस होता है
जो कि वो छुपा कर अपने साथ ले आया था। और जियान उससे वो लेग पीस लेकर खाना शुरू कर देता है। इतने में एक एविल स्पिरिट शाओली पर पीछे से आकर हमला करती है और उसे अपने साथ ले जाती है। और शाओ याओ और जियान दोनों जब ये देखते हैं तो वो दोनों ही उस एविल स्पिरिट का पीछा करते हैं, मगर शाओ याओ वहीं पे रुक जाता है। और दूसरी तरफ जियान वो अपने भाई का पीछा करते हुए बहुत दूर निकल आता है, मगर उसे कहीं भी अपना भाई नजर नहीं आ रहा होता। तो वो दूसरी डायरेक्शन की तरफ भागता है और एक एक गली में तलाश करता है, मगर उसे कहीं भी कोई भी नहीं नजर आ रहा था। और वो घूम फिर कर वापस शाओ याओ के पास आ जाता है, जिस पर शाओ याओ उसे कहता है कि तुम घबराओ मत, हम उसे दोबारा ढूंढ लेंगे। जिसके बाद अगले सीन में हमें उसी मॉन्क और स्वॉर्डमैन को दिखाया जाता है। शाओली उनके सामने बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था और वो उसके फोरहेड पे एविल मार्क देखकर पहचान जाते हैं कि इस बच्चे को किसी एविल स्पिरिट ने पजेस किया हुआ है। जिस पर वो स्वॉर्डमैन कहता है कि हमें इसे यहीं पे ही खत्म कर देना चाहिए, इसके साथ ये एविल स्पिरिट भी खत्म हो जाएगी। मगर वो मॉन्क कहता है कि नहीं, हम सबके सामने इसकी बलि चढ़ाएंगे ताकि सब लोग देखें और फिर उसके बाद हम लोग बहुत ज्यादा मशहूर हो जाएंगे। जिसके बाद ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं शाओ याओ ने जिस कैट को बचाया होता है वही उस एविल स्पिरिट का पीछा करते करते शाओ याओ और जियान को एक घर के पास ले आती है। जिसके बाद वो समझ जाते हैं कि शाओली इसी के अंदर है। तो वो एक छत के ऊपर जाकर रूफ टाइल बाहर निकालते हैं, जिससे वो देखते हैं कि नीचे वो मॉन्क और वो स्वॉर्डमैन दोनों बैठे हुए हैं। जिसके बाद जियान अपने भाई को बचाने के लिए दूसरे रास्ते से अंदर जाने की कोशिश करता है और शाओ याओ वहीं पे बैठकर उन लोगों की बातें सुन रहा होता है। वो कह रहे होते हैं कि हमें उस लड़के की बलि चढ़ानी होगी और उसके लिए हमें सही टाइम का इंतजार करना होगा। और वहीं मौजूद एक शख्स उससे कहता है कि आखिर वो बच्चा है कहाँ? तो वो मॉन्क कहता है कि वो बच्चा इस वक्त यहाँ पे नहीं है, हमने उसे एक खास जगह छुपा के रखा है। ये सुनकर शाओ याओ जियान को इस बात के बारे में बताने की कोशिश करता है, मगर वहाँ मौजूद दो गार्ड्स ने जियान को पकड़ लिया होता है और उसे बेहोश करके वो लोग पानी के अंदर फेंक देते हैं। तो पानी के अंदर जाते ही जियान को कोई लड़की नजर आती है जो कि उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाती है और उसे वापस ऊपर ले जाने लगती है, मगर उसे अचानक से शाओली की आवाज सुनाई देती है जो कि नीचे पानी की गहराइयों में होता है। तो उसे बचाने के लिए जियान फौरन से पानी की गहराइयों की तरफ जाने लगता है, पर अचानक कोई चीज उसे पकड़कर वापस ऊपर की तरफ खींच लेती है। वो असल में शाओ याओ होता है जो कि उसे खींचकर पानी से बाहर निकाल लेता है। तो बाहर निकलने के बाद जियान शाओ याओ से कहता है कि मुझे हर हाल में अपने भाई को बचाना होगा, मगर शाओ याओ उससे कहता है कि बेवकूफी मत करो, उन लोगों ने तुम्हारे भाई को कहीं और छुपाया हुआ है, मैंने उनकी बातें सुनी हैं, तुम्हारा भाई इस वक्त यहाँ पे नहीं है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्क और वो स्वॉर्डमैन शाओली को एक पिलर के साथ बांधकर वहाँ मौजूद बहुत सारे लोगों को जमा करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आप सब लोग जानते हैं कि बेबी ईटिंग एविल स्पिरिट हमारे बच्चों पे हमला करती है और उसकी स्पिरिट को एब्जॉर्ब करके उन्हें मार देती है। इसलिए हमें इस एविल स्पिरिट से जान छुड़ाने के लिए उसे हमेशा के लिए ही खत्म करना होगा। और फिलहाल वो एविल स्पिरिट इस बच्चे के अंदर है, इसलिए हमें इस बच्चे को मारना ही होगा ताकि हम लोग अपने आने वाले सारे ही बच्चों को बचा सकें। और वहाँ मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब इसके लिए राजी हो जाते हैं। पर अचानक इतने में उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है कि बस वहीं रुक जाओ। और सब लोग पीछे पलट कर देखते हैं तो पीछे एक एल्डर अपने एक साथी के साथ आ रहा होता है। उसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो हेवनली मास्टर है, ये इतना जल्दी वापस कैसे आ गया। उसे देखकर वो सब लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और हेवनली मास्टर उनसे आकर कहता है कि इस लड़के को इसी वक्त खोल दो और इसे बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं किया जाएगा। जिस पर वो लोग मास्टर से कहते हैं कि इस लड़के के अंदर एक एविल स्पिरिट है, अगर हम इसे नहीं मारेंगे तो ये एविल स्पिरिट कल को हमारे बच्चों के अंदर आएगी और उन्हें मारने की कोशिश करेगी। मगर हेवनली मास्टर कहता है कि जैसा मैंने कहा है वैसा करो, फौरन से इस लड़के को खोलो, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और मैं इसका इलाज करूंगा और इस एविल स्पिरिट को भी खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद वो लोग उस बच्चे को खोल देते हैं और हेवनली मास्टर उस छोटे लड़के को अपने साथ ले जाने लगता है। जिसके बाद वहाँ मौजूद लोग हेवनली मास्टर से मिलने की कोशिश करते हैं, जिस पर हेवनली मास्टर का एक आईब्रो हवा में उड़ जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो हेवनली मास्टर असल में शाओ याओ होता है और उसके साथ जो दूसरा बंदा होता है वो जियान होता है। और इसी तरह जब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो एक बंदा मास्टर की दाढ़ी पे हाथ लगाता है तो उसकी दाढ़ी ही उस बंदे के हाथ में आ जाती है, जिस पर उन लोगों को पता चल जाता है कि ये दोनों बहरूपिये हैं और वो सब के सब उन लोगों को चारों तरफ से आकर घेर लेते हैं और एक बंदा शाओ याओ पर आकर हमला करता है। और अगले सीन में हम देखते हैं जियान और शाओ याओ वो दोनों वहीं पे बंधे हुए होते हैं और वो लोग शाओली को भी दोबारा से उस पिलर के साथ बांध देते हैं। और जियान जैसे ही कुछ कहने की कोशिश करता है तो वो लोग उसके मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं और जैसे ही शाओली को मारने की कोशिश करते हैं तो अचानक से उसकी बॉडी के अंदर की इविल स्पिरिट जाग जाती है और उसके मुंह से बहुत ही खतरनाक डार्क पावर निकलने लगती है। ये देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर
डर जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो किंग ऑफ एविल स्पिरिट है। किंग ऑफ एविल स्पिरिट का सुनते ही सब लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और शाओली अपने आप को छुड़ाकर उस मोंक पर पहले हमला करता है और उस स्वॉर्डमैन का भी काम तमाम कर देता है और उसके बाद वहाँ मौजूद लोगों पर भी अपने एविल स्पिरिट से हमला करता है। इतने में जियान खुद को छुड़ाकर उसके पास आ जाता है तो वो एविल स्पिरिट जियान पर भी हमला करने की कोशिश करती है तो जियान उसके अटैक को ब्लॉक करता है और फिर अपने भाई से कहता है कि तुम मेरे भाई शाओली हो, ना कि तुम कोई एविल स्पिरिट हो। ये कहने के बाद अचानक से शाओली होश में आने लगता है जिससे उस एविल स्पिरिट का कंट्रोल उसकी बॉडी से खत्म होने लगता है और वो एविल स्पिरिट कहती है कि इस लड़के की तो सोल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और देखते ही देखते शाओली वापस से अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है और देखते ही देखते बेहोश होकर गिर जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दो लड़कियों को भागते हुए दिखाया जाता है जो कि जंगल से तेजी से भागते हुए जा रही होती हैं। उनमें से एक लड़की अचानक से थक कर गिर जाती है और कहती है कि मैं अब और ज्यादा नहीं भाग सकती। ये सुनकर उसके साथ फॉक्स गर्ल कहती है कि हम लोग यहाँ नहीं रुक सकते, अगर हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं तो वो टाइगर मॉन्स्टर तक पहुँच जाएगा और तुम जानती हो कि वो हमारे साथ क्या सलूक करेगा। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि अगर हम उस टाइगर से बच भी गए तो हम यूं ही भागते भागते भी मर जाएंगे। मगर वो फॉक्स गर्ल उसे पकड़कर जबरदस्ती वहाँ से भगाती हुई ले जाती है। जिसके बाद अगले सीन में हमें एक शॉर्ट स्टोरी बताई जाती है जिसमें हमें बताया जाता है कि आज से हजारों साल पहले शिवराज जो के बहुत ही पावरफुल वॉरियर होते हैं, उन्होंने अर्थ में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया था। यहाँ तक के अर्थ के चारों क्लान मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर पाए थे। जिसके बाद अर्थ के स्पिरिचुअल बीस्ट ने एक साथ मिलकर उन्हें हरा दिया और उन्हें एक साथ एक जगह सील कर दिया था। जिसके बाद से वो लोग उस सील को खुद गार्ड कर रहे हैं और कहा जाता है कि उन स्पिरिचुअल बीस्ट की वजह से वहाँ पे एक छोटा सा गांव आबाद हो गया था। मगर किसी को भी ये नहीं मालूम कि वो गांव अब कहाँ है, क्योंकि उसके बाद से कोई भी उस गांव में नहीं जा पाया। और फिर हम लोग जियान और शाओ याओ को देखते हैं जो कि उस स्टोरी टेलर के पास खड़े हुए होते हैं और वो बंदा उन लोगों को बताता है कि तुम्हारे भाई की मदद सिर्फ वही स्पिरिचुअल बीस्ट वाले गांव में ही होगी। ये सुनकर जियान कहता है कि चलो फिर हम लोग आज ही चलते हैं, मगर शाओ याओ उसे रोक लेता है क्योंकि वो बंदा उन्हें बताता है कि वो गांव यहाँ से इतना दूर है कि तुम लोग अगर पैदल चलकर जाओगे तो तुम्हें शायद 2 साल लग जाएंगे। मगर मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जिसके पास इसका भी हल है, वो तुम्हें पल भर में ही वहाँ तक पहुँचा देगा। मगर वो बहुत ही लालची है, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से तुम्हारी हेल्प करेगा। उसका नाम है अर्थ लॉर्ड। उसके पास एक सीक्रेट मैप है जिसे वो विल मैप कहता है। उस विल मैप की मदद से वो दुनिया भर में कहीं भी आ जा सकता है और वही विल मैप तुम लोगों की भी मदद कर सकता है। ये सुनकर जियान कहता है कि वो अर्थ लॉर्ड कहाँ है, तो वो शख्स उन लोगों को अर्थ लॉर्ड के बारे में बताता है। तो अगले सीन में हम देखते हैं जियान और शाओ याओ दोनों ही अर्थ लॉर्ड के श्राइन में पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि वहां पे हर तरफ धूल मिट्टी जमी हुई है। तो जियान और शाओ याओ दोनों ही वहां पे अर्थ लॉर्ड को तलाश करते हैं और उनके सामने उन्हें एक बहुत बड़ी मूर्ति नजर आती है जिस पर शाओ याओ को थोड़ा सा शक होता है और वो कहता है कि यहाँ पड़ी हुई हर चीज के ऊपर धूल मिट्टी जमी हुई है, मगर ये स्टैचू बिल्कुल साफ सुथरा है। और इतने में उस मूर्ति की आंख हिलने लगती है जिस पर जियान कहता है कि कहीं मेरी आंखों में धूल जम गई है या फिर ये बंदा सच में अपनी आंखें हिला रहा है। और फिर हम देखते हैं कि उस मूर्ति के फेशियल एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो जाते हैं जिस पर शाओ याओ कहता है कि लगता है कि शायद ये हमें कुछ करने के लिए कह रहा है। और इतने में वहाँ पड़ा हुआ एक छोटा सा बॉक्स हिलने लगता है जिस पर वो लोग समझ जाते हैं कि उन्हें इसके अंदर कुछ पैसे डालने होंगे। तो शाओ याओ कुछ सिक्के उसके अंदर डालता है और कहता है कि आजकल मेरे हालत कुछ खराब है, इसीलिए फिलहाल इन कुछ सिक्कों से ही काम चला लें। और हम देखते हैं कि एक पोर्ट का ढक्कन खुलता है तो जियान अपना हाथ उसके अंदर डालकर एक चिट बाहर निकालता है और जैसे ही उसे खोलकर देखता है तो वो विल मैप की जगह एक विल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल होता है जिस पर शाओ याओ कहता है कि लगता है कि शायद हमें ज्यादा सिक्के डालने पड़ेंगे, इतने कम सिक्कों में हमें वो विल मैप नहीं मिलने वाला। तो जियान अपने जेब से बहुत सारे सिक्के बाहर निकालता है और फिर उन्हें उस बॉक्स में डालता है जिसके बाद उस पोर्ट का ढक्कन दोबारा से खुल जाता है। तो जियान अपना हाथ उसके अंदर डालता है तो इस मर्तबा उसे एक छोटा सा बॉम्ब मिलता है जिस पर वो कहता है कि अर्थ लॉर्ड क्या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं,
आप चाहते हैं कि हम लोग इसके साथ फायर वर्क करें। इतने में अचानक उन्हें किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है, तो वो लोग उस मूर्ति के पीछे जाके छुप जाते हैं और हम देखते हैं कि वो फॉक्स गर्ल और फेरी बॉन दोनों ही वहाँ पे आ जाते हैं और स्टैचू को देखकर कहते हैं कि लगता है कि शायद यही वो अर्थ लॉर्ड है। वो उस अर्थ लॉर्ड के आगे झुक जाते हैं और कहते हैं कि अर्थ लॉर्ड प्लीज हमें आपका विल मैप चाहिए, हमें अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से बहुत ही दूर जाना होगा। तो उस अर्थ लॉर्ड के पीछे से जियान खुद अर्थ लॉर्ड बन के बात करता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को वो विल मैप नहीं दे सकता, क्योंकि वो मैंने तुमसे पहले ही किसी और को दे दिया है, इसलिए तुम लोग अब यहाँ से जा सकते हो। इतने में वो फॉक्स गर्ल उनके पीछे आ जाती है और कहती है कि अरे देखो तो सही, यहाँ पे तो दो अर्थ लॉर्ड हैं। तो फेरी बॉन उन्हें देखकर कहती है कि तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई हमें बेवकूफ बनाने की। अर्थ लॉर्ड को जब ये पता चलेगा तो वो उसके लिए तुम्हें बहुत ही सख्त पनिशमेंट देगा। ये कहने की देर थी कि उस अर्थ लॉर्ड के स्टैचू से बहुत ही तेज रोशनी निकलने लगती है, जिस पर वो सब के सब उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही वो रोशनी खत्म होती है तो वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई अर्थ लॉर्ड बाहर क्यों नहीं आया। मगर हम देखते हैं कि उनके सामने एक छोटे कद का एल्डर खड़ा हुआ होता है, जो कि उन्हें अपनी तरफ देखने के लिए कह रहा होता है। उसे देखकर वो लड़कियां कहती है कि अर्थ लॉर्ड तो बहुत ही छोटा सा है, जिस पर अर्थ लॉर्ड गुस्से में कहता है कि मैं पहले इस स्टैचू की तरह ही बहुत ही लंबा और हैंडसम हुआ करता था। तो जियान उसे मस्का लगाते हुए कहता है अर्थ लॉर्ड आप इनकी बात का बुरा मत मानिए, आप तो अभी भी बहुत ही हैंडसम हैं। ये सुनकर अर्थ लॉर्ड कहता है ये लड़का मुझे बहुत पसंद आया, इसमें सच में कुछ खास बात है। ये सुनकर जियान उससे कहता है कि अर्थ लॉर्ड प्लीज मुझे अपना विल मैप दे दीजिए, मुझे उसकी बहुत जरूरत है। ये कहने के बाद वो सब लोग उसके आगे घुटनों पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हमें वो विल मैप दीजिए। उनकी बातों की वजह से एल्डर भी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि तुम लोगों को वो विल मैप चाहिए ना, ठीक है, उसके लिए तुम्हें 10,000 सिक्के देने होंगे, जो पहले वो सिक्के देगा वही ये मैप ले जाएगा। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है और हम तुम्हें 10,000 सिक्के कहाँ से दें। ये सुनकर वो एल्डर कहता है कि क्या तुम्हारे पास सिक्के नहीं हैं? तुम लोगों ने तो बिला वजह में ही मेरा टाइम वेस्ट किया, जाओ और जाकर पहले पैसे जमा करो। फिलहाल मुझे नींद आ रही है इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहने के बाद वो अपने हाथों से सामने वाली दीवार पर एक स्पिरिचुअल गेट ओपन करता है और उसके अंदर चला जाता है, जिस पर जियान उसके पीछे जाने की कोशिश करता है मगर वो नहीं जा पाता। और वो लोग कहते हैं कि आखिर ये दीवार किस तरह की दीवार है, वो अर्थ लॉर्ड इसके अंदर कैसे चला गया। और दूसरी तरफ फेरी बॉन कहती है कि चलो सिस्टर हमें पहले जाके पैसों का बंदोबस्त करना होगा। इतने में शाओ याओ की नजर उसकी एयर रिंग पर पड़ती है, तो वो कहता है कि एक्सक्यूज मी मिस, आपके कान की दूसरी एयर रिंग कहाँ है? तो वो कहती है कि मुझे नहीं मालूम, शायद वो कहीं खो गई है। ये सुनकर शाओ याओ वो एयर रिंग बाहर निकालता है, जो कि बिल्कुल उसकी एयर रिंग से मैच हो रही होती है। और वो उसे बताता है कि जब मैं छोटा था उस वक्त मैं जंगल में गुम हो गया था और एक जगह बैठा रो रहा था, तो वहाँ पर एक फॉक्स गर्ल आई थी जिसने मेरी मदद की थी। वो फॉक्स गर्ल वहाँ पे आकर उससे कहती है कि सुनो बच्चे, क्या तुम गुम हो गए हो? तो शाओ याओ उससे कहता है कि हाँ, मुझे अपने घर का रास्ता नहीं मिल रहा। तो वो फॉक्स गर्ल उसे वहाँ से सेफली बाहर लेकर आ जाती है और जैसे ही वहाँ से वापस जाती है तो उसकी एयर रिंग वहाँ पे गिर जाती है और शाओ याओ उसे उठा लेता है। ये याद दिलाने के बाद वो फॉक्स गर्ल कहती है कि मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है, मुझे ये भी याद नहीं कि मैं तुमसे पहले कभी मिली हूँ या नहीं। तो शाओ याओ कहता है कि ये एयर रिंग इस बात का सबूत है कि हम दोनों पहले मिल चुके हैं, मगर वो फेरी बॉन कहती है कि ये एयर रिंग जरूर तुमने कहीं से चुराई होगी। मगर वो फॉक्स गर्ल कहती है कि मैं नहीं जानती कि ये एयर रिंग किसकी है, इसलिए तुम इसे अपने पास रख लो। ये कहकर वो दोनों ही वहाँ से चले जाती हैं और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग आपस में विल मैप को हासिल करने का प्लान बना रहे होते हैं और वो कहते हैं कि इतने ज्यादा पैसे तो हम लोग जल्दी जमा नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारे पास बस एक ही रास्ता है, क्योंकि वो एल्डर सोने के लिए गया है तो हम लोग चोरी छुपे उसके सीक्रेट रियलम में जा सकते हैं और वहाँ से वो विल मैप हम चुरा सकते हैं। ये कहने के बाद जियान और शाओ याओ दोनों ही पहले वहाँ पे जाते हैं और उस दीवार को अच्छे से चेक करते हैं, जिसके बाद शाओ याओ कहता है कि वो एल्डर कद का बहुत ही छोटा था, तो इसका मतलब इसका हाथ इतनी हाइट पे ही आया होगा। ये कहकर वो जैसे ही दीवार पे टच करता है एक सीक्रेट गेट ओपन हो जाता है, जिसके अंदर वो लोग फौरन से चले जाते हैं और जाते ही वो देखते हैं कि उसके सीक्रेट रियलम में बहुत ज्यादा सोने के सिक्कों की भरमार है। तो शाओ याओ कहता है कि हमें जल्द से जल्द वो विल मैप ढूंढना होगा। ये कहकर वो उन सोने के सिक्कों में उस विल मैप को तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो इतने में वो फॉक्स गर्ल और फेरी बॉन दोनों ही वहाँ पे आ जाते हैं। वो लोग छुप कर उन लोगों को देख रहे होते हैं। इतने में
वो फॉक्स गर्ल चोरी छुपे अंदर जाने की कोशिश करती है तो उसकी वजह से वहाँ पड़ा हुआ एक गमला गिरता है तो शाओ याओ फौरन से उसे पकड़ लेता है ताकि उसकी आवाज से वो एल्डर कहीं जाग न जाए। मगर दूसरी तरफ जियान को उस एल्डर की कोई परवाह नहीं होती। वो उन सिक्कों के अंदर से विल मैप को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है मगर वो विल मैप उसे नहीं मिल रहा था। पर अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराता है और वो विल मैप उसके सामने आकर गिरता है तो वो फौरन से जाकर उसे उठा लेता है। मगर इतने में फेरी बोन भी उसे आकर पकड़ लेती है तो वो दोनों ही उस विल मैप के लिए लड़ने लगते हैं। और दूसरी तरफ जियान देखता है कि शाओ याओ उस फॉक्स गर्ल के साथ खड़ा हुआ है तो वो उस विल मैप को उसकी तरफ थ्रो करता है जिसे शाओ याओ जंप लगाकर फौरन से कैच कर लेता है। मगर वो फेरी फॉक्स गर्ल उसे अपने फॉक्स विप से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है जिससे शाओ याओ उसके बेहद करीब पहुंच जाता है। मगर वो उससे मैप छीनकर वापस से फेरी बोन की तरफ थ्रो करती है जिसे वो पकड़ती है तो उसके हाथ से जियान दोबारा से वो विल मैप छीन लेता है और इसी तरह ये छीना झपटी चलती रहती है। और हम आखिर में देखते हैं कि जैसे ही जियान वो मैप छीन कर जंप लगाता है तो वो सीधा उस स्टेचू के पास जा गिरता है जिसकी वजह से उस एल्डर की आंख खुल जाती है और सब लोग यहाँ वहाँ छुप जाते हैं। और एल्डर जैसे ही होश में आता है और एल्डर की जैसे ही आंख खुलती है तो वो अपनी छड़ी से रात को दिन में बदल देता है और अपने आसपास देखता है तो उसे नजर आता है कि कोई उसके सीक्रेट स्पेस में आया है और उस जगह की किसी ने तलाशी ली है। और इतने में उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि उसके श्राइन में आया होता है। वो शख्स असल में एक टाइगर मॉन्स्टर था जो कि उस एल्डर के पास आकर कहता है कि क्या तुम्हारे पास 2 लड़कियां आई हैं जिन्होंने तुमसे विल मैप मांगा है। तो वो एल्डर कहता है कि हाँ वो मेरे पास आई थी मगर उनके पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने उन्हें वो विल मैप नहीं दिया। ये कहने के बाद वो टाइगर मॉन्स्टर अंदर आ जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जियान और फेरी बोन दोनों ही उस मैप के लिए लड़ रहे होते हैं और उनकी आपस की छीना झपटी की वजह से जियान वो मैप छीन तो लेता है मगर खुद वहाँ से नीचे गिर जाता है। उसका स्क्रॉल डीमन के आर्मर में चला जाता है और वो खुद उस टाइगर के हाथों में आ गिरता है जिस पर वो टाइगर उस एल्डर से कहता है कि ये कौन है। जियान को वहाँ पे देखकर वो एल्डर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मेरे सीक्रेट स्पेस में कैसे आ गए। तो जियान कहता है कि मुझे लगा शायद वो दोनों लड़कियां हमसे पहले ही उस विल मैप को ले लेंगी इसीलिए मैं चोरी छुपे ही यहाँ पे आ गया। उन लड़कियों का सुनते ही वो टाइगर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अच्छा तो तुम उनसे मिले हो, चलो बताओ वो कहाँ हैं, तुमने उन्हें कहाँ देखा था। तो टाइगर को गुस्से में देखकर जियान कहता है कि अगर मैंने इन लोगों को बता दिया कि वो लड़कियां यहीं पे हैं तो ये टाइगर उन्हें मार देगा। इतने में शाओ याओ भी वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि वो 2 लड़कियां यहाँ पे नहीं है क्योंकि हम लोग उनसे पहले ही यहाँ पे आ गए थे क्योंकि हमें शक था कि एल्डर के सोने के बाद वो लोग चोरी छुपे हमसे पहले ही यहाँ पे आ जाएंगे और उस विल मैप को लेकर चली जाएंगी, इसीलिए हम लोग यहाँ पे पहले आकर छुप गए थे। जिसके बाद वो एल्डर देखता है कि उसका विल मैप यहाँ पे नहीं है तो वो उन लोगों से गुस्सा होते हुए कहता है कि मेरा विल मैप किसके पास है, चलो बताओ वरना तुम्हें इसके लिए भरपाई करनी पड़ेगी। तो वो टाइगर डीमन कहता है कि वो विल मैप जरूर उन 2 लड़कियों ने ही चुराया हो। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।